देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, 10 ଟଙ୍କା କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 125 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେଶ କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଲପିଜି ଦର ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଦର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଯେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 809 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ଏହା 835 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନମ୍ବର 2, ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସକାଳୁଆ। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ସକାଳୁଆ ହେବ। ସକାଳ 7ରୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସକାଳ 7:30ରେ କୋର୍ଟ ବସିବେ ଓ ଦିନ 10ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସକାଳ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ ସଦର ଓ ପୁରୀ ସଦରକୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ସକାଳୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ନାମଫଳକରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଉତ୍କଳ ଦିବସଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଉତ୍କଳ ଦିବସଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବ ମେମୁ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ କଟକ ପୁରୀ, କଟକ ପାରାଦୀପ, କଟକ ଭଦ୍ରକ ରୁଟ୍ରେ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ରୁଟ୍ରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଦିନକୁ 2 ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। କଟକ ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ହାତିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 3 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ଓ 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 2 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ରହିଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 2ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, କମିଲା ସେଭିଂସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁଧ ହାର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ। ସେଭିଂସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 4%ରୁ 3.5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷିକିଆ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର 5.5%ରୁ 4.4%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 2 ବର୍ଷିଆ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର 5.5%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷର ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର 5.5%ରୁ 5.1%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର 6.7%ରୁ 5.8%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଟର୍ମ ଜମା ଯୋଜନା ଉପରେ ସୁଧ ହାରର ହିସାବ ତ୍ରୈମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପିପିଏଫ୍ 7.1%ରୁ 6.4%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଏସ୍ସି 5.9% ସୁଧ ରହିବ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା 6.9% ସୁଧ ରହିବ। 5 ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 6.5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଉପରେ ସୁଧ ହାର 6.2%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
नंबर 7 एप्रिल पहिलारू बदलिबनी बेसरकारी कर्मचारी दरमा। एप्रिल 1 रु केंद्र सरकार नुआ वेतन संहिता लागू करिवे बोली निष्पत्ति नेइथिले। एबे एही निष्पत्ति रे परिवर्तन करिसंती सरकार, अर्थात एबे जेमिति नियम रहिछि सेहिपरि नियम चालू रहिबो। आगामी दिन रे एही संहिता लागू हेबो बोली जणा पड़िछि। रिपोर्ट अनुसार सरकार एबे नुआ वेतन संहिता नियम लागू न करिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एहा द्वारा दरमा व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। सूचनायोग्य जदि नुआ वेतन संहिता लागू होइथांता ताहेले दरमा स्ट्रक्चर बदली जाइथांता। मोट दरमा बेसिक पीएफ एवं अलाउंस तैयारी होइथांता। जणे मास शेष रे जेते टंका पाउथिले सेतिरे ह्रास होइथांता। दरमार गोटे बड़ अंश पीएफ एवं ग्रेच्युटी रे जमा होइथांता। नुआ दरमा स्ट्रक्चर रे मोट वेतन भत्तार अलाउंस 50% रु अधिक होई परिबो नाही। नंबर 8 बढ़िला आधार पान लिंक अवधि। आयकर विभाग पान कार्ड को आधार सहित लिंक करने बाध्यतामूलक करिछि। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अनुसार पान नंबर एवं आधार को संजोग करिवार शेष तारीख भाव में 31 मार्च 2021 थिला। एबे एही अवधि को जून 30 पर्यंत वृद्धि करिसंती। अर्थात पान कार्ड एवं आधार लिंक संजोग अवधि 3 मास वृद्धि होइछि। कोविड महामारी को दृष्टि रे रखी लोकों को यह अवधि बढ़ा जाइछि। पान कार्ड को आधार सहित लिंक करिबा पई मेसेजिंग ऐप सेवा एवं ऑनलाइन रे होई परिबो। नंबर 9 प्रधानमंत्री आवास रे लागि परिबो नाही बिजु पक्का घर लोगो। प्रधानमंत्री आवास योजना रे निर्माण होइतिबा घरे लागि परिबो नाही बिजु पक्का घर लोगो। बिजु पक्का घर लोगो न लगेबाकू राज्य सरकार को केंद्र सरकार चिठी माध्यम रे निर्देश दैछंती। मार्च 30 रे भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव राज्य मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखि ए बाबद रे जणैछंती। चिठी रे उल्लेख अछि जे बिजु पक्का घर लोगो अनुमोदित नुहे, तेणु प्रधानमंत्री आवास योजना रे बिजु पक्का घर योजनार लोगो लागि परिबो नाही। एही योजना रे राज्य सरकार निजस्व कौनसी लोगो व्यवहार करिपारिबे नाही बोली चिठी रे स्पष्ट भाव लिखा जाइछि। नंबर 10 राज्य स्तरीय उत्कल दिवस उत्सव में 3 मंत्री अतिथि। एप्रिल 1 तारिख में सरकारी स्तर में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय उत्कल दिवस पालन हेबो। एही कार्यक्रम पई अतिथि नाम चूड़ांत होइछि। भुवनेश्वर में हेबाकुथिबा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 3 जण मंत्री अशोक चंद्र पंडा, रघुनंदन दास और ज्योति प्रकाश पाणिग्राही अतिथि भाव जोग देवे। विधायक अनंत नारायण जेना और सुशांत कुमार राउत एथिरे उपस्थित रहिबे। कटक रे हेबाकुथिबा जिला स्तरीय उत्कल दिवस कार्यक्रम में अर्थमंत्री निरंजन पुजारी अतिथि भाव जोग देवे। समस्त मंत्री विभिन्न जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिथि भाव जोग देवे। नंबर 11 पुरी गुणुपुर मध्य चलिबो स्वतंत्र ट्रेन। पुरी एवं गुणुपुर मध्य स्वतंत्र ट्रेन चलिबो। एप्रिल 22 तारिख ठारू पुरी रु एवं 23 तारिख ठारू गुणुपुर रु परवर्ती परामर्श पर्यंत एक स्वतंत्र एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल करने पूर्वतट रेलपथ पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। पुरी गुणुपुर स्पेशल पुरी रु पूर्वाह्न 9:30 रे छाड़ी गुणुपुर रे राति 8:50 रे पहुंचिबो। फेरिबा मार्ग रे गुणुपुर पुरी स्पेशल गुणुपुर ठारू प्रत्यह सकाळ 6 रे छाड़ी पुरी ठारे अपराह्न 3:45 रे पहुंचिबो। नंबर 12 ताड़चेर थर्मल प्लांटर नुआ यूनिट प्रतिष्ठा पाई निष्पत्ति। शिल्पायन माध्यम नूतन नियुक्ति सृष्टि करने दिगरे अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भाव मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र जातीय तापज विद्युत निगम लिमिटेड अध्यक्ष गुरुदीप सिंह सह आलोचना करिसेंती। आलोचना रे मुख्यतः ताड़चेर ठारे टीटीपीएस नुआ यूनिट प्रतिष्ठा सह स्थानीय लोकमानकर विभिन्न अभियोग असुविधा आदि विषय आलोचना होइथिला। आलोचना परे परे गणमाध्यम प्रश्नर उत्तर दे मुख्य शासन सचिव श्री महापात्र कहिथिले जे ताड़चेर टीटीपीएस एक नुआ यूनिट प्रतिष्ठा विषय नीतिगत निष्पत्ति होइछि। खूब शीघ्र ग्रिडको एनटीपीसी शक्ति और अन्य संपृक्त विभाग मानक मध्यरे बैठक अनुष्ठित हेबो। एथिरे नुआ यूनिट प्रतिष्ठा और स्थानीय बासिंदा मानक अभियोगर आशु समाधान निमंते निर्दिष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत हेबो। ए मिलित कार्ययोजना त्वरान्वित कार्यान्वयन पई राज्य सरकार समस्त प्रकार सहयोग जोगई देबे बोली मुख्य शासन सचिव कहिथिले। नंबर 13 आजिठारु 45 वर्षर ऊर्ध्व व्यक्ति को दियाजिबो कोविड टीका। आजिठारु 45 वर्षर ऊर्ध्व व्यक्ति टीकाकरण कराजिबो। आजिठारु 2 दिन छुट्टी थिले भी कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु टीकाकरण हेबो। अधिक संक्रमण हेउथिबा जिल्ला रे टीकाकरण को प्राथमिकता दियाजिबो। बलांगीर, नुआपड़ा, सुंदरगढ़, कणाहांडी, अनुगुल, केन्दुझर, बरगढ़, नवरंगपुर, मयूरभंज संक्रमण बढ़ुथिबारु एही जिल्ला को प्राधान्य दियाजिबो। कटक, खोर्धारे संक्रमण बढ़ुथिले भी एही जिल्ला रे टीकाकरण भी अधिक रहिछि। माछ मांस विक्रेता, सेलून, स्ट्रीट भेंडर, ऑटो, बस ड्राइवर, विद्यालय, कॉलेज शिक्षक, रेस्टोरेंट कर्मचारी भली संवेदनशील वर्गर व्यक्ति को प्राधान्य दियाजिबो। नंबर 14 आजिठारु अचल हेबो नै स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था। एप्रिल 1 रु अचल हेबो नै स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था। सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक को समय देला आरबीआई। पूर्वरु एप्रिल ठारु मोबाइल फोन बिल, यूटिलिटी बिल, मीडिया विषय वस्तु पई सब्सक्रिप्शन चार्ज एवं बैंक रो स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था अर्थात ऑटो डेबिट माध्यम रे ओवर टॉप स्ट्रीमिंग सेवा पई आपण करूथबो मासिक
ଦେୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। आरबीआई नूतन नियम एप्रिल 1 लागू करिबो बोली कहिबा सह आगको अवधि बढ़ाଯିब नाही बोली समस्त बैंक एवं क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदानकारी संस्था को कहिथिला। किंतु काली सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक को समय देछि आरबीआई, अर्थात सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक रो स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था चालू रहिबो। नंबर 15 पुणी बंद है तालचेर थर्मल पावर स्टेशन। मझिरे कईटा दिन चलैबा परे काली पुणी बंद होईछि तालचेर थर्मल पावर स्टेशन। काली सकाळु कारखानार यूनिट 3 रु विद्युत उत्पादन बंद कर जाइछि। पूर्वरु मार्च 31 परठु टीटीपीएस कर्तृपक्षंकर कारखाना बंद करिबा पई जो विधिवत योजना चलीथिला ताहा कार्यकारी हेबाकु जाउछि। गोटिए पटे कारखाना बंद हेबाकु जाउथे बेले अन्य पटे लोके उभय केंद्र राज्य सरकारक उपरे क्षुब्ध होइछन्ति। नंबर 16 कृषि आईन संपर्क में रिपोर्ट दाखल कला सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित कमिटी। कृषि आईन तर्जमा पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित कमिटी काली निजर रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय निकट में दाखल करिछि। निजर एही रिपोर्ट प्रस्तुत करने पूर्व एही कमिटी प्राय 85टी कृषक संगठन सह आलोचना करिथिला। एही आलोचना पर विवादर समाधान बाहर करने को मध्य कमिटी उद्यम करिथिला। एबे होली छुट्टी पर बंद थिबा सुप्रीमकोर्ट आसंता एप्रिल 5 रे खोलिबा परे कृषि आईन उपरे शुणाणी आरंभ करिवो। से पर्यंत रिपोर्ट रे कोन रहिछि ता गोपनीय रहिबो। कृषक आंदोलन तीव्र हेबा परे गत जनवरी 12 रे सुप्रीमकोर्ट नुआ कृषि आईन को 2 मास पई स्थगित रखिथिले। या सहित एही प्रसंग सह जड़ित सबु पक्षों सह आलोचना पई एक कमिटी गठन करिथिले। नंबर 17 भारत अमेरिका मध्य ऊर्जा संपर्कर पुनः प्रतिष्ठा हेबो कहिले धर्मेंद्र। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकार नुआ ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोल्मक मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम एक प्रारंभिक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में श्री प्रधान जेनिफर ग्रानहोल्म को नुआ पदरे अवस्थापित पई अभिनंदन जणाइबा सह भारत अमेरिका मध्य रणनीतिक ऊर्जा संपर्क उपर समीक्षा करथिले। उभय नेतृत्व भारत अमेरिका मध्य रणनीतिक ऊर्जा संपर्कर पुनः प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन नुआ प्राथमिकतार प्रतिफलित करने इच्छा प्रकाश करिसेंति। स्वच्छ ऊर्जार प्रचार प्रसार करने, कम प्रदूषणयुक्त मार्ग आपणैबा एवं सबुज ऊर्जा सहयोग को त्वरान्वित करने दिगरे काम करने श्री प्रधान अमेरिकार सचिव सहमति प्रकाश करिसेंति। नंबर 18 बंगोपसागर में लघुचाप ओडिशा पर प्रभाव नहीं। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइतिबा साइक्लोनिक सर्कुलेशन काली एक लघुचाप परिणत होइछि। यह आसंता 24 घंटे आहरी घनीभूत होबार संभावना रही। परवर्ती 24 घंटे यह उत्तर पूर्व दिगरे गति करी डिप्रेशन रे परिणत होबार संभावना रही। किंतु यह एक बात्य रूप नेबार संभावना कम बोली भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि। एही लघुचाप प्रभाव में अंडमान निकोबार द्वीपपुंज अंचल में आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। या सहित समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्य को न जीवाकु परामर्श दिया जाइछि। अन्य पक्षरे एही लघुचापर प्रभाव मूल भूखंड उपरे पड़िबार संभावना कम बोली जणा पड़िछि। नंबर 19 24 घंटा मध्य राज्य में पुणी 297 आक्रांत चिन्हट। बढ़ी बढ़ी चली कोविड मीटर। गत 24 घंटा मध्य राज्य में पुणी 297 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। अनुगुल 9, बालेश्वर 6, बरगढ़ 18, भद्रक 2, बलांगीर 5, कटक 17, ढेंकानाल जड़े, गंजाम 7, जगतसिंहपुर 2, जाजपुर 5, झारसुगुड़ा 5, कणाहांडी 57, केन्द्रापड़ा 2, केन्दुझर 12, खोर्धा 33, कोरापुट 5, मयूरभंज 7, नवरंगपुर 3, नयगढ़ 2, नुआपड़ा 31, पुरी 6, संबलपुर 17, सोनपुर 3, सुंदरगढ़ 38 और स्टेटपुल 4 जन आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। नंबर 20 एप्रिल पाई मार्गदर्शिका कंटेनमेंट जोन निष्पत्ति नेबे स्थानीय प्रशासन। कोविड संक्रमण जारी रहिता बेले राज्य सरकार बुधवार एप्रिल मास पाई मार्गदर्शिका जारी करिसेंति। राज्य सरकार स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय पक्षर जारी नुआ मार्गदर्शिका अनुसार एणिकी कोविड संक्रमित बहुल अंचल को चिन्हट करी कंटेनमेंट जोन बा अवरोध अंचल किंबा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थानीय प्रशासन जारी करि परिबे। नूतन गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषणा क्षमता जिलापाल और पौर प्रशासन को दि जाइछि। जो अंचल में अधिक संक्रमण चिन्हट हेबो ताको अवरोध अंचल भाव घोषणा निष्पत्ति नहीं पारिबो स्थानीय प्रशासन। सेही बड़ी धर्मानुष्ठान भितर को केते जन श्रद्धालु जीवर और धार्मिक काम रे केते जन शामिल होई परिबे तार स्थानीय प्रशासन निष्पत्ति उपरे निर्भर करिवो। नंबर 21 प्रोफेसर दीपक बेहेरा किस विश्वविद्यालय नूतन कुलपति। विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर दीपक कुमार बेहेरा किस विश्वविद्यालय नूतन कुलपति भाव जोग देइछन्ति। काली से पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी दायित्व ग्रहण करिसेंति। किस और किट प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत समेत उभय किट और किस विश्वविद्यालय वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रे काली प्रोफेसर बेहेरा कार्यभार ग्रहण करिसेंति। पूर्व से संबलपुर और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुलपति भाव कार्य करथिले। बलांगीर राजेंद्र विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति थिले।
कालिफर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी रे फुल ब्राइट विजिटिंग प्रोफेसर भाव कार्य करथिबा प्रोफेसर बेहेरा नृतत्व क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पई अनेक जातीय और अंतर्जातीय पुरस्कार सम्मान अधिकारी होई पारिछंती। नंबर 22 12 रु 15 वर्ष वयस्कों उपर 100% प्रभावशाली फाइजर टीका। टीका निर्माता बायोटेक और फाइजर काली एक बड़ घोषणा करिसेंती। बायोटेक और फाइजर तैयारी करिथिबा कोविड-19 टीकार क्लिनिकल ट्रायल तथ्य आसिथिया बेले यह दर्शाइछि जे टीका 12 रु 15 वर्ष वयस्कों उपर 100% प्रभावशाली अटे। यह होछि विश्वर प्रथम कोविड-19 टीका जहाँ 12 रु 15 वर्ष वयस्कों उपर 100% फलप्रद होइछि। बायोटेक और फाइजर तैयारी करिथिबा कोविड-19 टीकार क्लिनिकल परीक्षण फलाफल पर देश में शीघ्र पिलामानकु टीका दियाजिबार प्रक्रिया आरंभ हेबार संभावना रहिछि। नंबर 23 भोट ग्रहण पूर्व नंदीग्राम 144 धारा लागू। भोट ग्रहण पूर्व पश्चिमबंगर नंदीग्राम 144 धारा लागू करा जाइछि। मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अभियोग पर नंदीग्राम 144 धारा लागिथिबा जणा पड़िछि। मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अभियोग करिसेंति जे नंदीग्राम विशृंखला करिबा और भोटर मानकु धमकेइबाकु बीजेपी बाहर राज्यरु गुंडा आनिछि। एने से निर्वाचन कमिशनर पाखरे अभियोग करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु निवेदन करिसेंति। एहासह गतकाली ममता अभियोग करथिले जे पश्चिम मेदिनीपुर किछि गाँव लोकमानंको बीजेपी उठेई नहीं एक स्थान रे लुचेई रखिछि। दीदींको एभडी अभियोग पर निर्वाचन कमिशन 144 धारा लागू करिथिबा जणा पड़िछि। नंबर 24 24 घंटा रे देश में 53,480 कोविड-19 आक्रांत चिन्हट। देश में कोविड संक्रमित जनित परिस्थिति खराब रु आहरी खराब आड़क जाउछि बोली केंद्र सरकार कहूथिया बेले गत 24 घंटा मध्य देश में 53,480 जन कोविड-19 आक्रांत चिन्हट होइछंती। बुधवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 53,480 नूतन संक्रमण और 354 मृत्यु रेकर्ड करा जाइछि। नंबर 25 बीजेपी विरोध में एकत्रित होगापी विरोधी नेता चिठी लिखिले ममता। बीजेपी विरोध में एकजुट होगाकू एवं भारत में गणतंत्र रक्षा करने को आह्वान देइछंती पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी। काली विरोधी दलर वरिष्ठ नेता मानकु चिठी लिखि मुख्यमंत्री ममता बानर्जी एभली आह्वान देइछंती। कांग्रेस मुख्य सोनिया गांधी, एनसीपी मुख्य शरद पवार, डीएमके मुख्य एमके स्टालिन, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आरजेडी मुख्य तेजस्वी यादव, एसपी मुख्य अखिलेश यादव, एनसी मुख्य फारूक अब्दुल्ला एवं पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती समेत 15 जन अण बीजेपी नेता चिठी लिखिंट दीदी। नंबर 26 इशरत जहां फेक एनकाउंटर मामला रे राय प्रकाश। इशरत जहां फेक एनकाउंटर मामला रे सीबीआई रो स्वतंत्र कोर्ट काली राय दैछंती। एही मामला रे अभियुक्त थिबा क्राइम ब्रांच रो 3 जन अधिकारी को दोषमुक्त कर जाइछि। ए 3 अधिकारी को दोषमुक्त करबा सह कोर्ट कहिथिले कि इशरत जहां लश्कर तैयबार जने आतंकवादी थिले। कोर्ट आहुरी कहिसंती कि क्राइम ब्रांच रो एही 3 जन अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो रो सूचना मुताबक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिथिले। सेमाने जहा करिबार थिला ताहा ही करिसंती बोली कोर्ट कहिथिले। नंबर 27 भारत सह व्यवसाय पई पाकिस्तान बढ़ेला हाथ। बालाकोट एयर स्ट्राइक धारा 370 उच्छेद पर पाकिस्तान और भारत मध्य समस्त प्रकार संपर्क छिन्न रही। एहरी भितर पाकिस्तान भारत सहित पुणी थे व्यवसाय करने को इच्छुक देखा जाइछि। तेणु पाकिस्तान भारत उपर जो व्यावसायिक प्रतिबंधक लगेइथिला ताहा एबे हटेई देइछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार रो बयान मंत्रणालय भारत पाखरु आमदानी नहीं लगेइथिबा प्रतिबंधक हटेइछि। पाकिस्तान रे कंचामाल रो अभाव देखा देइछि। तेणु समस्यार समाधान पई पाकिस्तान रो बयान शिल्प भारतरु कपा नेबको आग्रह देखैछि। सेहीपरि भारतरु चीनी आमदानी करिबा पई पाकिस्तान सरकार निष्पत्ति नेइछंती। नंबर 28 साइरस इंजीनियरिंग कारखाना रे भयावह अग्निकांड। मांडिया कुदर स्थित साइरस इंजीनियरिंग कारखाना रे काली अपराह्न प्राय 1:30 भयावह अग्निकांड घटिछि। अग्निकांड रे बहु संपत्ति नियारे पड़ी भस्मीभूत हो जाइछि। रिपोर्ट लेखाहेला पर्यंत अग्निकांडर कारण स्पष्ट रहिछि। घटनास्थल रे 4टी दमकल पहुंची नियाको आयत्त करबाको उद्यम करुछंती। एही कारखानाटी बंद रहिथिबारु क्षयक्षतिर सठिक आकलन करि हेउ नाही। एही अग्निकांड संपर्क रे खबर पाई राजरांगपुर कांसोबाहाला पुलिस घटनास्थल रे पहुंचिसंती। नंबर 29 एप्रिल 4 रे भारत पाकिस्तान टी20 मैच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमी खुशी खबर। एप्रिल 4 तारिख में 2 चिर प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान मध्य खेल टी20 मैच। केवल भारत पाकिस्तान नुहति तृतीय दल भाव बांग्लादेश मैच खेल। यह 3 दल को नहीं एक दृष्टिहीन ट्राई सीरीज खेल। टूर्नामेंट टी बांग्लादेश में आयोजित हो। हुए तो यह दृष्टिहीन क्रिकेट किंतु भारत पाकिस्तान मध्य कौन मैच रोमांच भरपूर रही है। यह ट्राई सीरीज एप्रिल 2 ରୁ 8 तारिख पर्यंत चलिबो। सीरीजर सबुजाक मैच ढाका रे खेल। टूर्नामेंट रे भारत 2 थर पाकिस्तान को भेटिबो। टूर्नामेंट उद्घाटनी मैच एप्रिल 2 तारिख में भारत बांग्लादेश मध्य खेल। एप्रिल 3 तारिख में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मैच खेल। 4 तारिख में भारत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबो। नंबर 30 अर्जेंटीना गस्त पई भारतीय हॉकी दल घोषित। आसंता मासरे ओलंपिक विजेता अर्जेंटीना विपक्ष में एफआईएच प्रो लीग मैच खेलिबा पई मंगलवार भारतीय पुरुष हॉकी दल घोषित होईछि। व्यक्तिगत कारण दर्शाई यूरोप गस्तरी ओहरी जाइथिबा मनप्रीत
ସିଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 22 ଜଣିଆ ଦଳରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ଅମୃତ ରୋହିଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପ୍ରିଲ 11-12 ତାରିଖରେ ବ୍ରୁନେସ୍ ଏୟାର୍ସଠାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏପ୍ରିଲ 6, 7, 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 4ଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।